سب کیا سوچ رہی انہوں سب اچھے ہی کرو مگر حقیقت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے برباد ہی. یہاں تک یاد رکھ لو تمہیں سوچتے رہیں گا کہاں کی درگاہ چلے گئے, کہاں کی چھلے چلے گئے, کہاں کی چھٹی کو چلے گئے, کہاں کی 40 دن اسے چلے گئے, یہ لوگ سوچتے رہیں گا تمہیں بہت آباد ہو گئے کرو مگر اللہ بولتا ہے تمہیں سب بربادی میں ہے, سب جنے بربادی میں ہے. پھر اللہ بولتا ہے الا الذین آمنوا, مگر کچھ لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو ایمان لا کو ہیں. الا الذین آمنوا, کون آمنو, کون ایمان لا کو ہی سو کون, ایمان لا کو ہی سو کون کر کے بولے تو جو اہل بیت کی جو محبت کرتا ہے ان کو چھوڑ کو, کن کو چھوڑ کو, اہل بیت کی جو محبت کرتا ہے ان لوگوں کو چھوڑ کو باقی کے سب دنیا کے اندر انہوں نے اپنی مرضی سے چل رہی, اپنے سر سے چل رہی, سب بربادی میں ہیں. الا الذین آمنوا, جو ایمان لا کو ہی. کس کے پر ایمان کا ڈیفینیشن قرآن میں کیا ہے, حدیثاں سے کیا ہے, جو اللہ سے, اس کے رسول سے اور رسول کے اہل بیت سے جو محبت کرے وہ مومن, وہ مومن, وہ ایمان والا. انہیں ایمان والا, ایمان والا وہ نہیں جو خالی جا کو درگاہیں پھر لے کہا ہمارے سنیا میں درگاہیں پھر لیا تو انہیں ایمان والا, کم کے بھی جھمکے بھی دم کے ڈال لیا تو انہیں ایمان والا. عامل کرنے گیا تو بہت بڑا ایمان والا, کامل کرنے گیا تو بہت بڑا ایمان والا. یاد رکھ لو تمہیں عاملان کرنے کاملان کرنے ادھر ادھر جاتی انہیں ایمان والا نہیں. اللہ بولتا تو بربادی کی طرف جا رہا ہے. ایمان والا کون, جو اہل بیت رسول اللہ سے محبت کرے, جو اہل بیت رسول اللہ سے محبت کرے. اللہ حکم کر ڈالیا پورے بربادی میں ہیں. الا الذین, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا کو ہیں. کیا ایمان لا کو ہیں, محبت علی کر کو ہیں, علی ولی اللہ بول کو ہیں, فاطمہ کنیز اللہ بول کو ہیں, حسن و حسین اہل شباب الجنہ, 12 امام کو مانتی, غوث و خواجہ کو مانتی. ان کو چھوڑ کو باقی کے تمہیں نمازاں پڑھو, روزے کرو, حج کرو, زکوٰۃ دو, رات کو خواباں دیکھو, رات کو سپنے دیکھو, تمہیں کہاں کی نیچے لڑ کو اوپر ٹانگا اٹھا ڈالو. جب اللہ قبول نہیں کرتا تمہاری ایمانداری کو تو ہمیں کہاں سے قبول کرنا بولو, نہیں ہوتا زندگی میں. یاد رکھ لو, کبھی بھی یاد رکھ لو, ایمانداری پہلے کس سے, ایمانداری رسول اللہ بول کو ہی. ایمان وہی لوگوں کا ہے جو میرے اہل بیت سے محبت کرے, جو اہل بیت سے محبت کرے. دیکھو اس سے بعد آیت کیا ہوا, الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات, جو ایمان والے ہیں, جو علی والے ہیں, حسن والے ہیں, حسین والے ہیں, فاطمہ والے ہیں, غوث اعظم دستگیر والے ہیں, خواجہ والے ہیں, انہوں کیا بولتی معلوم, اللہ تعالیٰ کیا بولتا معلوم, عامل الصالحہ, انہیں کیا کرتا ہے, عمل صالح کرتا. کیا کرتا ہے, عمل صالح. عمل صالح کر کو بولے تو اب جو ہمیں کرتی نہیں وظائف ذکر یہ سبھی چیزیں نا, صالح. صالح کر کو بولے تو پاک جو بزرگان دین سے جو عمل دیتی, وظائف دیتی, وہ وظائف کے واسطے کیا کرتا ہے, وہ وظائف ان کو کرتے رہتا, عمل صالح کرتا ہے. عمل صالح کرتے رہا تو انہیں کیا ہوتا ہے, انہیں ایمان والا رہتا ہے. عمل صالح انہیں ایمان والا رہتا ہے. اس کے واسطے یاد رکھ لو کبھی بھی کیا صالح کرنا, الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات, کیا کرنا, عامل الصالحات, عمل صالح کرنا, عمل صالح کرنا. عمل صالح کر کو بولو تو تمہیں اپنے آپ سے عمل نہیں کر لینا, کیا ملے اٹھا لینا, کیا ملے کر لینا, ویسا نہیں. ہاں کیا بولیا حکم, کیا بولیا اللہ تعالیٰ, بیٹھے بیٹھے کہ نہیں کیا کرتی زراعت میں انہوں شروع ہو جاتا, مرید بنتا ہے, خان خانی, سلسلانی, رابطانی, سب کچھ نہیں, خود انوج پڑھنا شروع کرتا. پڑھیا انہیں خود کرنے گیا تو کیا ہوتا, الٹے مارا پڑتی. اب پڑھی نہیں جب بہت جنے کو انہیں عامل بننے کی کوشش کرتا ہوتا, انہیں پیر صاحب بننے کی کوشش کرتا ہے. عمل صالح کبھی بھی یاد رکھ لو, جو صالحین کا عمل ہوتا ہے, صالحین جو ہوتی, جو بزرگان دین انہوں جو کر کو ہم نہ حکم دیتی, وہ حکم کے مطابق ہمیں کرے تو کیا ہوتا ہے, وہ عمل صالح ہوتا ہے. ایک عمل ہوتا ہے, ایک عمل صالح ہوتا ہے. ایک عمل ہوتا ہے, عمل وہ جو ہے جو عام پبلک میں یہ پورے لوفراں مرشدہ بن کو بیٹھی, خلیفے بن کو بیٹھی, نہ کبھی بھی سلسلے میں آتی, نہ سلسلے میں اجازت لیتی, کیا بھی نہیں, کیا عملہ کر کو رہتی, لے جا کو مار ڈالتی ہیں. یہ تاج کیا بھی تو نہیں ہوتا ان کے ہاتھ سے, جا کو مرڈراں کر ڈالتی, کیا کچھ کر ڈال کو انہوں سبھی جا کو برباد کر ڈالتی لوگوں کو. یاد رکھ لو عمل صالح, جو حکم تمہارے مشائخ سے جو ملتا ہے وہ عمل صالح ہوتا ہے. تمہارے مشائخ سے جو ملتا ہے وہ عمل صالح ملتا ہے. باقی کا تمہیں عمل کرے تو وہ کیسا معلوم, ایک گولی کھائے, ہر گولی کھائے تو اس کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے, ہر گولی کا سائیڈ افیکٹ. زیادہ
गोलियां, दर्द के गोलियां खाए तो किडनी फेल, लिवर फेल रहता नहीं। ऐसा हर गोली खाए तो हर अमल का भी साइड इफेक्ट रहता है। कुछ अमल उसका साइड इफेक्ट नहीं रहता है। कौन से अमल अगर को बोले तो जो उसका जो शायख देता सो वो अमल रहता है, वो कभी भी मुरीद को साइड इफेक्ट नहीं रहता है, उसका कभी भी साइड इफेक्ट नहीं रहता कहते हैं। उसके अंदर सवाब ही सवाब कहते हैं। यह कुरान पढ़ना, ये दरूद पढ़ना, या इस्तग़फ़ार पढ़ना और साले अमल इजाज़त से करना, ये चार जो ये चीज़ें ही जो इंसान को साइड इफेक्ट नहीं लाता। बहुत से मुरीदा को क्या होता है, जिक्र करती क्या कहते हो, आंख वजन हो रहा है, सिर का दर्द आ जा रहा है, घर में बलाएँ आ जा रही, अरे कर रहा जिक्र, बलाएँ कई कारी, याद रख ले तू इजाज़त नहीं सो जिक्र करता, कुरान का जिक्र नहीं करता, कुरान में जो है वो जिक्र नहीं करता। उन्हें कौन की बैठा, कहाँ से की आया, अब वो मजदूर वाले करती नहीं, जरा मंडिया वाले जरा करती, कौन को तो कोसा की पीर साहबा को बोलिया करता है, कौन से की पीर का नाम ले लगो, उन्हें क्या किया, किस नहीं कर को पुकारता है, क्या पुकारता है। कभी भी याद रख लो, हर अमल में उसका साइड इफेक्ट होता है। अगर साइड इफेक्ट नहीं होना, तुम्हें ये एक साइड इफेक्ट करे तो दूसरा तुम्हारे कहती गुर्दे कहती भी चल जाती है डैमेज, कौन कौन किस क्या की करती फ़र्क आ जाता है। उसके वास्ते कभी भी याद रख लो ये सब चीज़ें। उसके वास्ते याद रख लो जो भी हुक्म से करती वो बेशक बहुत बेहतरीन अमल साल है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। हक़ के साथ रहना, किसके साथ रहना, हक़ के साथ रहना और सब्र के साथ रहना। अब तफसीर अलग होती है, टाइम भी ज़्यादा हो जाता है, तुम्हें सब नमाज़ पढ़ना। वतवासो बिलहक़ तफासिर में अहल बैत के अंदर और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, या अल्लाह मेरी सारी उम्मत को हक़ की तरफ फेर। किसकी तरफ फेर, हक़ की तरफ फेर। और जब मौला अली मुश्किल कुशा को देख को बोले, या अल्लाह हक़ को अली की तरफ फेर, हक़ को अली की तरफ फेर। तो इससे इतना मालूम होता है कि खुदा की कसम हक़ का मतलब इज इक्वल टू अली। बेशक बेशक अली, नारे हैदरी। इसका मतलब क्या होगा अब कि कभी भी याद रख लो, अगर तुम्हें खसारे में नहीं रहना, बर्बादी में नहीं रहना, बर्बादी में बहुत जने आ गई, बहुत जने मुर्शदान क्या क्या कीच कर को बर्बादी में आ गई। याद रख लो अगर बर्बादी में नहीं जाना तुम्हें लोग, तो कभी भी याद रख लो ईमानदार होना। ईमान कैसा बनता, सो रसूल और आले रसूल से मोहब्बत करने से ईमान आता। उसके बाद हक़ का दामन थामना। किसका दामन थामना, हक़ का दामन थामना। हक़ कौन, मौला अली मुश्किल कुशा। हक़ का दामन, वतवासो बिल हक़, अच्छा पकड़ना हक़ को, वतवासो बिस सब्र, वतवासो बिस सब्र। एक हक़ का दामन थामो, एक सब्र का दामन थामो। अब सब्र कर को बोले तो चुपके बैठ जाने का नाम सब्र नहीं। वो भी एक हदीस सुनो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहती मस्जिद नबी में, मस्जिद में बैठे रहती, आयत इन्नल्लाह मा साबरीन को आयत उतर हो रहती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तफसीर सुनाते रहती, उसकी तफसीर सुनाते रहती कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। सहाबा बैठे रहती, बहुत से सहाबा भूखे भी ही, प्यासे भी ही, गरीब भी ही, मुफलिस भी ही। जरे सहाबा को हाथा पाँव के ऊपर जंगा के अंदर मारा पड़ गई, कट गई, टुकड़े होगी, दर्द से तड़प रही, तब भी बैठी सब्र से। जरे जने भूखे ही तब भी बैठे सब्र से। जरे जने जोरू बच्चा को छोड़ डाली तब भी बैठी सब्र से। जरे जने उनके बाप को छोड़ कर मुसलमाना होगी उन लोग, तब भी सब्र से बैठी। इन्हों सोचती अब अल्लाह के रसूल को आयत उतरी कुरान की, इन्नल्लाह मा साबरीन। अब अल्लाह के रसूल बोल रही अल्लाह हमारे साथ में है, अल्लाह हमारे साथ में। तो सहाबा का ख्याल क्या रहता है, आजू बाजू देख, क्या बोलती, ऐसा आजू बाजू देख लेती। सरकार दो आलम पूछती, सरकार को हर चीज़ मालूम रहता कि देख रही सो कहीं को मैं हदीस बोल रहा हूँ, मैं कुरान की आयत बोल रहा हूँ कि अल्लाह ताला साथ में हो जाता सब्र करने वाला। सहाबा सोच रही कि हमें सबसे ज़्यादा सब्र कर रही तो अल्लाह हमारे साथ में है ना कर को चेक कर रही, अल्लाह हमारे साथ में है ना कर को इधर उधर देख रही। रसूलुल्लाह पूछती क्या कर रही सहाबा कर को, बोले तो या रसूलुल्लाह आप फरमाए कि इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ रहता है। हमें भी सब्र करने वाले ना, हमें भी तुम्हारे सहाबा ना, हमें भूखे ही प्यासे ही जोरू बच्चा को छेड़े, सब कुछ छोड़े, जान माल औलाद अजदाद सब छोड़े, या रसूलुल्लाह अल्लाह हमारे बाजू रहेगा, साथ में रहेगा को देख रही है, अल्लाह हमारे साथ में रहेगा को देख रही है। सरकार दो आलम मुस्कुराती, क्या तुम्हारा खुदा क्या जिस्म रखता है, क्या तुम्हारा
खुदा क्या जिस्म रखता है नहीं। जो तुम्हारे साथ हो जाता है? तो उन्होंने बोलती साहबा हमना तो क्या भी मालूम नहीं, तुम्हें बोले हमें देख रही, तुम्हें बोले हमें देख रही, क्या अल्लाह ताला साथ में नहीं होता क्या? बोलती सरकरा का दोनों अल्लाह ताला हर चीज़ से पाक, जिस्म से, हाथ से, पैर से, सबसे पाक। मगर या रसूल अल्लाह अगर हमारे साथ में अल्लाह नहीं है तो ये आयत झूठी हो जाती है ना, ये आयत झूठी हो जाती है कि तुम्हें खुद अल्लाह बोलता है अल्लाह साथ में है सब्र करने वालों के साथ, और फिर अल्लाह खुद वहाँ हमने अपने आप को नहीं बता लेता ना, नहीं दिखा लेता ना, या तो ये आयत झूठी हो जाएंगी या तो ये कौल झूठा हो जाएगा। अगर सच्चा है तो ये सच्चा कैसा होता है या रसूलुल्लाह? आयत करके बोले तो रसूलुल्लाह बोलती बैठो बैठो, इंतज़ार करो इंतज़ार करो। ये एक बार, दो बार, तीन बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाती। वहाँ से चल्ले को छोटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 साल के बच्चे लड़खड़ाले को आ रही, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते करते इमाम हुसैन को पकड़ को ले जाकर गोद में बिठाती। ऐ सहाबियों, जो आयत की मैं तफसीर कर रहा था और आप पूछ रहे थे कि अल्लाह ताला आपके पास है क्या, क्या इन्नल्लाह मा साबरीन, आज देखो कायनात में सब्र करने वाला मैं हूँ और मेरे बाजू इन्नल्लाह मा साबरीन, सुभान अल्लाह, हुसैन आपके साथ में मेरे साथ है। और इसकी तफसीर यही होती है कि जिसके साथ हुसैन है, जिसके साथ हुसैन है समझ लेना उसी के साथ सब्र है, और जिसके साथ सब्र है समझ लेना उसी के साथ हुसैन है, और जो हुसैन जिसके साथ है समझ लेना अल्लाह ताला उसका सब्र उसके साथ है। और ख़ुद सरकार दो आलम फरमाती कि हुसैन वो है कि खुद सब्र भी हुसैन को सलाम करे, सब्र भी जिसे सलाम करे और सब्र भी जिससे मदद ले। सब जने अल्लाह फरमाता है, बुजुर्गान दीन फरमाती, रसूल अल्लाह फरमाती कि तुम्हें सब्र से इमदाद करो, सब्र से मदद तलब करो, तुम्हें सब्र से मदद तलब करो। हकीकत में सब्र से मदद तलब करने का मतलब कुरान के अंदर हुसैन से मदद तलब करो, हुसैन से मदद करो। इससे समझ में क्या आता है? वतवासो बिल हक़ी वतवासो बिस सब्र, तुम्हें ईमान वाले होना पहले, अगर बर्बादी में नहीं जाना ईमान वाले होना। ईमान वाला को तो कौन? अहले बैत की मोहब्बत करने वाला, और दामने अली नहीं छोड़ना कभी भी, दामने मौला अली नहीं छोड़ना, और इमाम हुसैन का कभी दामन नहीं छोड़ना। अगर ये रहा तो उन्हें आको आबादी में है, उन्हें आको उसके दर्जात की बुलंदी में है, उन्हें जन्नत वाला है। अगर तुम्हें इनको छोड़ को अगर कोई काम करे तुम्हें समझ लेना तुम्हें खसारे में। तुम्हें दुनिया में किसे भी पकड़ लो, क्या तभी पकड़ लो, तुम ना डेफिनेशन कुरान का क्या है, तुम्हें खसारे में ही दो। तुम्हें हसन व हुसैन और पंजतन पाक और 12 इमाम को पकड़ो, ये पकड़ने वाले उन्हों आबाद में ही, उन्हों दर्जात की बुलंदी में ही कर को। यत्ता फ़र्क है सो आम इंसान में और मुरीद के अंदर फ़र्क क्या है? उन्हें सब्र को ये नहीं है सो चीज़ समझता है, नहीं, और हक़ को नहीं है सो चीज़ समझता है। मगर अहले तरीक़ वाले सब्र को हुसैन समझती, हक़ को अली समझती, ईमान को अहले बैत की मोहब्बत समझती। जो ईमान में अहले बैत की मोहब्बत करे, मौला अली के साथ हुए और इसके साथ हुए इमाम हुसैन के साथ, उनुच अल्लाह ताला फरमाता सो उन्हों खसारे में नहीं, बर्बादी में नहीं। बरकत ये उन्वान था। सोच तुमने क्या करके बोले तो वो मौत के बाद काम आने वाली चीज़ें, बेशक मौत के बाद काम आने वाली चीज़ें। देखो ये महफिल के अंदर इमाम मौला अली मुश्किल कुशा बैठे रहती, कोई इंसान आता, कोई बंदा आता है, पूछता है या अली मुश्किल कुशा आप हम ना बताओ कि हमें दुनिया में कई को आए। तो मौला अली मुश्किल कुशा फरमाती दुनिया में इसके वास्ते आए कि अल्लाह ताला हमना जो आइंदा ज़िंदगी ख़बर की, हशर की, महशर की ज़िंदगी दिया है उसका तोशा तैयार करने के वास्ते आए, उसका तोशा तैयार करने के वास्ते आए। हमें सोचती कि हमें अपने माँ बाप भाई बहन बच्चों को हम ना उनकी मुस्तक़बिल बनाने आ रही, कर को याद रख लो, उनका मुस्तक़बिल नहीं, हकीकत में हमारी ख़बर का मुस्तक़बिल बनाना सो, हमारी ख़बर का मुस्तक़बिल बनाना सो। ये आदमी आज भूल गए, ख़बर छोड़ डाल को, उसकी आखिरत छोड़ डाल को, उन्हें क्या सोच रहा है, उसकी औलाद, उसका बच्चा, उसकी सोसाइटी, उसके दोस्तों का मुस्तक़बिल। हमें कमा को दियो तो हमारे बच्चे खा ले जाते हैं, तू कमा को देते तेरे बच्चे खा ले जाती हैं, तुझे इतनी गारंटी नहीं कि तू जीता कि तेरे बच्चे जीतेंगे, तू जीता है या तेरी औलाद जीती है कि नहीं जीते, कि उन्हें कब तेरे से पहले मर जाती है कि उनके बाद मर जाती है, कि क्या हो जाती है, कि खुद हमना माँ पता नहीं। फिर भी हमें जो चीज़ अल्लाह का हुक्म नहीं है वो चीज़ के पीछे भागो। अल्लाह मौला अली फरमाती कि जो इंसान दुनिया में आता उन्हें ख़बर की तैयारी के वास्ते आता। कौन उसको पूछा या अली मुश्किल कुशा ख़बर के बाद
हमारा हशर कैसा होता है, हमारा हशर कैसा होता है, क्या हमारे मामलात होती हैं। तो सरकार मौला अली मुश्किल कुशा फरमाती कि देखो अल्लाह ताला ऐसा महशर का दिन लाता है कि सारों का पूरे मर जाती, सारों मर जाती। इजराइल अलैहिस्सलाम और एक बार सुर फूकती, आखिरी में सुर फूकती। जब ऐसा सुर फूकती तो सारे फरिश्ते, पहले इंसान पूरे मर जाती, उसके बाद फिर फरिश्ते मर जाती, मलाइका मर जाती, सब कुछ मर जाती। यहाँ तक वो सुर की आवाज़ सुन ले को इजराइल फूकते सो इजराइल खुद इंतकाल हो जाती, इजराइल खुद इंतकाल हो जाती। अब दुनिया में कौन भी नहीं रहता, अल्लाह के सिवा कोई कायनात में नहीं रहता। फिर अल्लाह ताला हुक्म करता है सुर फूकने का, फिर सुर फूकने का हुक्म करता है। जैसा हुक्म को फूक करता है तो इजराइल अलैहिस्सलाम को जान आती है, फिर इजराइल अलैहिस्सलाम सुर फूकती। जैसा सुर फूकती तो हर इंसान, हर फरिश्ता, हर मलाइका, हर अनबिया, हर मुरसलीन पूरे ज़िंदे होते, पूरे ज़िंदे होती। और ज़िंदे होने के बाद अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल्लाह ताला हर इंसान को गिरोह गिरोह के साथ, ग्रुप्स के साथ, जैसा हमारा सिलसिला है एक ग्रुप, ऐसा अल्लाह ताला हर गिरोह के साथ ज़रा 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 अलग अलग उठाता। पहले गिरोह को उठाता, पहले ग्रुप को उठाता। वो गिरोह को अल्लाह ताला के फरिश्ते ऐसा उठाती कि वो गिरोह को ज़मीन के ऊपर, जैसा ज़मीन के ऊपर लिटा को सुला डालती, ज़मीन के ऊपर, वो तपती ज़मीन के ऊपर। वो भी कौन सा दिन? महशर का दिन। महशर का दिन 50,000 साल का दिन। महशर का दिन तांबे की ज़मीन, सबा नेज़े के ऊपर सूरज, ज़मीन जल्लेक रहती है, आसमान का सूरज सामने रहता है। यत्ती गर्मी, यत्ती गर्मी, यत्ती गर्मी रहती है कि उसकी शिद्दत से बड़े बड़े अनबिया भी अपने अपने ज़बाना से जीभ बाहर निकाल को अलतश, प्यास प्यास प्यास, या अल्लाह नफसी नफसी, मंजे बचा, ये हालत में रहती। पहला गिरोह निकलता, पहला गिरोह निकलता। वो गिरोह को जैसा निकालती फरिश्ते, ज़मीन के ऊपर लिटा को, ज़मीन के ऊपर लिटाले को घसीट लेकर, हज़ारों लाखों रतियाँ आदमियाँ ज़मीन के ऊपर लिटा को रहती। फिर अल्लाह ताला का हुक्म होता, दूसरा गिरोह निकलता, दूसरा गिरोह निकलता। वो तीसरे गिरोह को अल्लाह ताला महशर में बुलाता, अल्लाह ताला महशर में बुलाता और उनको फरिश्ता को हुक्म करता कि इनके काना में सीस पिघला को डालो, इनके काना में सीस पिघला को डालो। पिघला को डालती, सीस पिघला को डालती। जैसा डालती एक सीस का खतरा पड़ते ही उसका पूरा बुल्डा फुटता, उसका बुल्डा फुटता, मगर वहाँ मौत नहीं आती। आदमियाँ मौत और हयाती के बीच में जपते रहते, मौत और हयाती के बीच में रहती। अल्लाह हुक्म करता फरिश्ता को डालो। फरिश्ते पूछते कब तक डालना या अल्लाह? बोलती कि ये 50,000 साल का एक महशर का दिन, 50,000 साल का एक महशर का दिन, जब तक ये महशर का दिन नहीं हो सके इसके कान में डालो। ये कान में डालती, बुल्डा फिटता, फिर हुक्म होता, फिर सिर जम जाता, फिर ये तरफ पलटाती, फिर ये कान में डालती। ऐसा फिर 50,000 साल, कितने हज़ार साल? 50,000 साल चलते रहते, 50,000 साल। फिर हुक्म होता अल्लाह का, उठाओ दूसरे तीसरे गिरोह को ले लगाओ, तीसरे गिरोह को ले लगाती। अब तीसरे गिरोह को ले लगाए तो फरिश्ते क्या करती हैं, उसके जिस्म के अंदर, उसके जिस्म के ऊपर आग की चैन, आग की जो जंजीर रहती है, आग की जो जंजीर रहती है, वो सारी जंजीर उसके जिस्म के ऊपर डाल को रहती है। पूरी जंजीर जिस्म के ऊपर फिर को रहती है, चीखते रहती हैं, ज़मीन आग हो जाती है। यहाँ तक आसमान के अंदर सूरज नज़दीक रहता है, इतनी गर्मी के नज़दीक आग में जैसा लाल होकर रहती है चैन, वो चैन को चारों तरफ इंसान के लपट को, मुंह को, उसके जिस्म को, उसके पाँव को पूरा लपट को रहती, चीखते रहती। फरिश्ते पूछती या अल्लाह कब तक ये चैन लपट को रहना, कब तक ये जंजीर लपट को रहना? अल्लाह का हुक्म होता है कि महशर का दिन 50,000 साल का दिन। कितने हज़ार साल का? 50,000 साल का। फिर अल्लाह ताला फिर फरिश्तों को हुक्म करता है, अरे फरिश्तों जाओ चौथा गिरोह लेकर आओ, चारवां गिरोह लेकर आओ। चारवां गिरोह आता, चारवां गिरोह को अल्लाह ताला हुक्म करता फरिश्तों को कि इनके जिस्म जो रहती आग की कैंचियों से, लोहे की कैंचियों से ये जिस्म को काटा जाता, उसकी अंगलियां कटती, उसका गोश्त कटते रहता, उसके काना कटते रहती, उसकी ज़बान कटते रहती है, उसकी आँखें कटते रहती, फिर टुकड़े होकर गिरती, फिर आग की कैंची से फिर काटा जाता, फिर जोड़ा जाता, फिर काटा जाता। ऐसा काटती जैसा जाको एक बाग के अंदर कोई माली जाको झाड़ को छोटा करता नहीं, झाड़ को कैसा छोटा करता है, ऐसा आग की कैंची से इंसान को छोटा किया जाता।
پھر اللہ کے حکم سے انہیں پورا چھوٹا ہوتا سب سے کم ہو جاتا. جب کینچی نہیں چلنے جاتے پھر اللہ کا حکم ہوتا پورا انسان بنتا ہے. پھر اسے کاٹتی, درد ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, مگر اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے یہ چارواں جو ہے اسے 50,000 سال تک اسے کٹتے رہا, 50,000 سال تک کٹتے رہا. پھر حکم کرتا ہے 5واں گروہ لے کر, 5واں گروہ لے کر, پھر 5واں گروہ لے کر آتی. 5ویں گروہ کو اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے فرشتوں اس کو آگ کی دیوار, انگار کی دیوار, اس کے سامنے, اس کے پیچھے, اس کے دائیں, اس کے بائیں, اس کے اوپر, اس کے نیچے 6 طرف بھی آگ کی دیوار بنا دو, 6 طرف بھی آگ کی دیوار بناؤ. اور ایسی دیوار بناتی جس طرح انسان ٹائٹ فٹنگ کپڑے پہنتا ہے برابر فٹ ہوتا ہے, ایسا دیوار فٹ ہوتی ہے. دیوار 6 طرف بھی فٹ ہوتے, چیختے رہتا ہے اللہ, سامنے آگ, پیچھے آگ, دائیں آگ, بائیں آگ, اوپر آگ, نیچے آگ, چیختے رہتا ہے یا اللہ بچا, یا اللہ بچا, یا اللہ بچا. اللہ بولتا ہے نہیں, 50,000 سال, یہ محشر کا دن 50,000 سال, 50,000 سال تک بھی یہ آگ کے دیواروں کے بیچ میں 6 طرف بھی اسے قید کر کو رکھو. کسے؟ یہ انسان کو, جو یہ گروہ کو پورا قید کر کو رہے, پورا گروہ قید ہو کر رہتا. پھر اللہ حکم کرتا 6واں گروہ, پھر 6واں گروہ کو بلاتی اور اللہ حکم کرتا ہے ان کو آگ کے کاٹے دیکھیں, وہ آگ میں وہ بھی کاٹے بنا کو, تیز کاٹے بنا کو اس کے اندر آگ بناتا ہے, لال ہو کو رہتی کاٹے. وہ کاٹوں کو لوگ جا کو انکھیا میں چباؤ کرتا, انکھیا میں چباؤ کرتا ہے. کب تک یا اللہ یہ گروہ کو چبانا؟ بولتا ہے جب تک یہ 50,000 سال قیامت کا دن پورا نہیں ہوتا یہ آنکھوں کے اندر چباتے رہو, یہ آنکھوں کے اندر چباتے رہو. اسے 50,000 سال تک یہ جو گروہ رہتا ہے, یہ جو پورا گروہ رہتا ہے, گروپ رہتی ہے, 50,000 سال تک انکھیا میں چباتے رہتی. پھر اللہ تعالیٰ بولتا ہے جاؤ 7ویں گروہ کو لے کر, 7ویں گروہ کو لے کر. تو 7ویں گروہ کو اٹھا لے کر آتی. تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے ان کو دسترخوان بچھاؤ. یا اللہ بچھ گیا دسترخوان. بولتا ہے ان کے جسم کو کاٹو, تو ان کا جسم کاٹا جاتا. جیسے جسم کے ٹکڑے دسترخوان کے اوپر گرتی, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بولتا ہے ان کے جسم کے ٹکڑوں کو ان کو خود کھلاؤ, ان کے جسم کے ٹکڑوں کو خود کھلاؤ. فرشتے مارتی, اس کے منہ میں ڈالتی, انہیں کراہت کرتا ہے, وقاری کرتا ہے, خے کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے اگر نہیں کھایا تو اس کے خے کے ساتھ اس کے جسم کے ٹکڑے کو کھلاؤ, خے کے ساتھ جسم کے ٹکڑے کو کھلاؤ. ظلم کرتی ہیں آدمیاں, ہمیں نہیں کھاتے ظلم کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ اسلام کے اندر بدترین جو جانور ہے سور, بدترین جانور جو کتا ہے, کتے کو کاٹ کو لے کر کھلاؤ, کتے کو کاٹ کو لے کر کھلاؤ. کتے کو کھلاتی, سور کو کھلاتی, یہاں تک انہیں خے کرتا ہے. پھر خے کو منہ میں ڈالتی, یہاں تک بولتا ہے یا اللہ نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ حکم کرتا ہے جاؤ اس کتوں اور یہ سور, یہ گدوں کا پیپ لے کر, خون لے کر, پیپ خون پلاتی. یا اللہ ہم نہ مار ڈال, ہم نہ فیصلہ کر ڈال, ہم نہ جہنم کو بھیج ڈال. تڑپتی آدمیاں, مگر اللہ بولتا نہیں, یہ محشر کا دن, میں یوم الدین, یہ دن کا مالک, تمہیں جو گناہ کرے, جیسا گناہ کرے. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وکل انبیاء. اتنا تڑپتی کہ دسترخوان بچھا کو سور, کتا, یہاں تک اس کا پیپ, اس کا خون پلایا جاتا 50,000 سال, 50,000 ایئرس. پھر اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے 8واں گروہ اٹھایا جاتا. اللہ حکم کرتا ہے ان کو سب چونٹیاں بنا ڈالو. کیا بنا ڈالو؟ چونٹیاں بنا ڈالو. وہ سارے گروہ کو چونٹیاں, چھوٹے چونٹیاں ہو جاتی ہیں, اور چونٹیاں بنا کو بولتا اللہ تعالیٰ یہ محشر کے میدان میں ان کو پھیلا ڈالو, ان کے محشر کے میدان میں پھیلا ڈالو. اب دیکھ لو محشر کا میدان, انسان چمٹی ہو گئے, لاکھوں کروڑوں اربوں آدمیاں. اب چمٹیاں کے اوپر کیسا قدم رکھیں گے, اور زمین بھی وہ بھی گرم ہو کو آگ ہو گئے, اس کے اوپر وہ چمٹیاں پھرنا سے الگ, اوپر سے لے کو آدمیاں کے پاواں پڑنا الگ. جیسا آدمی کا پاواں پڑیا, ذرا آدمیاں آگ کی
लपेट में रहती, ज़रा नफसी नफसी आलम में भागते रहती। ये परेशानी के अंदर जो इंसान चूमती बन को रहता है उसके ऊपर खुनलती, टुकड़े टुकड़े होता, मरता नहीं। याद रख लो, कभी भी एक बार दुनिया में मौत आई उसके बाद कभी भी इंसान फिर नहीं मरता। फिर इंसान चाहे उन्हें अल्लाह का वली होंदे, चाहे उन्हें अल्लाह का दुश्मन होंदे, ना अल्लाह का वली खबर में मरता है ना अल्लाह का दुश्मन खबर में मरता। कि वली नहीं मरता, वली इसके वास्ते नहीं मरता कि उन्हें जन्नत के पूरे ऐशो आराम उसे होना, जन्नत के पूरे ऐश आराम उसे मिलती। और दुश्मन रसूल और दुश्मन खुदा की नहीं मरता, उसके जहन्नम के पूरे 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 जितने भी अजाब हैं उसके ऊपर होना। अगर मरा तो इंसान को उसका एहसास नहीं रहता, उसका नफ्स नहीं रहता, उसके वास्ते ज़िंदा दो भी रहती। बहुत जनों को क्या ख्याल है कि खाली वलियाँ ज़िंदा करो, खाली वलियाँ नहीं भी ज़िंदा। तुम्हें जितने भी बर्बाद हो को, जितने भी मुनाफिक आहीं, मुर्तदा आहीं, काफिर आहीं, मुशरक आहीं, वो भी ज़िंदा उनके खबरा में भी कई साथ ज़िंदा की कर को बोलो तो उन्होंने अजाब में ज़िंदा होते रहते, इन्हों आँखों रहमता में ज़िंदा रहते। ये जैसा मौला अली मुश्किल कुशा सुनाती, ये 8 गिरोह जैसा सुनाती, तो वो जो सहाबी रहता है उन्हें बेहोश हो को इंतकाल हो जाता। ज़रे सहाबियाँ रहती जो सुनते सुनते उन्हें बेहोश हो जाती, ज़रे इंतकाल हो जाती। बहुत देर के बाद होश आता, बहुत देर के बाद होश आता। होश आने के बाद साहबा पूछती, या अली आप ऐसा मंज़र सुनाएं, ऐसी परेशानी का मंज़र सुनाएं, खाली हमें सुन को ऐसा परेशान हो गया ना, सुन को ऐसा परेशान हो गया ना, ये सब जने को ऐसा होता क्या करके बोले तो मौला अली फरमाती कि ये मरहला हर इंसान को भी होता, हर इंसान को भी होता है, हर मोमिन को भी होता है, मगर इल्लल्लज़ीना आमनु, मगर उनको छोड़कर जो ईमान लाए, जो हक़ के साथ थे, सब्र के साथ थे, इनको छोड़कर बाकी का जितने भी लोग अल्लाह ताला पैदा करया, जितने भी मखलूक़ अल्लाह ताला पैदा करया, खुदा की कसम ये सारे मखलूक़ों को गिरोह गिरोह उठाता है, ये 8 गिरोह बनाता है। 8 गिरोह बना को इनको ऐसी ऐसी तकलीफ़ में ले जाता है कि तुम ना सब्रिश नहीं होता। बोलती या अली क्या हमें सुन को हमें परेशान हो जा रही ना। अली बोलती और क्या तभी सुनाना क्या। बोलती खुदा की कसम ये सुनाए सो बस है, अब तुम्हें 9वां गिरोह भी 10वां गिरोह 12वां गिरोह सुनाए करके बोले तो खुदा की कसम हमें सुन भी नहीं सकते। अब यत्ता बताओ, हम ना बचने की तरीक़ा बताओ, हम ना ये मरहले से बचने का तरीक़ा बताओ। तो मौला अली फरमाती कि खुदा की कसम ये गिरोह वैसा होगा जिसको ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा, ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा, ना वो आग से डरेंगे, ना चूंटियाँ होने में डरेंगे, ना इनका जस्म काटा जाएगा, ना कोई चीज़ इनके पर उस दिन का 50,000 का अजाब उनके पर कुछ करेगा। वो गिरोह वो होगा जो खुदा की कसम हमारे वास्ते हम अहले बैत के वास्ते अपनी ज़िंदगियां गुजारता है, हमारी शान और शौकत और फजीलत के वास्ते वो सारी ज़िंदगी गुजारता है, जो अमल साले करता है, जो हमारे अहकाम के ऊपर चलता है। खुदा की कसम वो अकेला वाहिद गिरोह होगा, उसका अलम मैं पकड़ा हूँगा, मैं अलमदार हूँगा, और खुदा की कसम वो अलम बरदार मैं हूँगा। और जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे मानने वाले हैं, दिल से, याद रख लो, दिल से, ज़बान से और अमल से, क्या करना, दिल से, ज़बान से, अमल से। खाली दिल से मान लेना से नहीं, हमें बहुत बड़े चाहने वाले अली के, गौसे पाक के, खाली ज़बान से बोलना नहीं, नारे हैदरी नारे रिसालत नहीं, अमल से। क्या करना, अमल से। अमल कैसा करती, जान देना, जान का तो मर जाओ नको, जान का तो हम ना नको। जान का मतलब क्या है, वक्त। अब तुम्हें 24 घंटे की तुम्हारी ज़िंदगी, आधा पौना घंटा मौला अली के वास्ते, अहले बैत के वास्ते, रसूल अल्लाह के वास्ते निकालना, गौसे आज़म के वास्ते निकलना, उसका मतलब क्या है, जान देना, माल देना। माल करके बोले तो तुम्हें जो तुम्हारी कमाई करती, तुम्हें जो कमाती हलाल कमाई, उसके अंदर माल देने का मतलब क्या है, गरीबों को, गौर गुरबा को, तुम्हारे ख़ानदान वाले कुछ रंदे, तुम्हारे रिश्तेदारों को रंदे, तुम्हें हक़ बनता है कि तुम्हें उनको कुछ देना, उसके अंदर उनको कुछ देना। उसके वास्ते क्या करते सो, 11वीं 12वीं ये छठी ये कई को करते सो, ये अहले बैत के नाम को खिलाते सो, अहले बैत के नाम को खिलाती पिलाती, माल देना, जान देना, और अपने आल और अजदाद को कुर्बान करना। मतलब क्या है, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे अम्मा बाबा, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे रिश्तेदारों को इनकी मोहब्बत सिखाना,
किनकी मोहब्बत? इनकी मोहब्बत सिखाना। तुम्हें सोचते रहेगा मैं कमाया मैं कमाया मैं कमाया, याद रख लो मैं कमाया नहीं, कभी भी बोलना ये गौसे पाक का सदका, ये ख्वाजा का सदका, ये हुसैन का सदका, ये हमें खारी ना, ये फातिमा जहरा का सदका, ये हमें पीरी ना, ये फातिमा जहरा का सदका। हमारा क्या भी नहीं, सब उनका, हमारा क्या भी नहीं, सब उनका। तब भी हमारे बच्चे क्या समझते हैं, तो ये हमारा माल नहीं बा, उनका माल। हमारी जोरू तभी समझती है और हमारा माल नहीं बा, ये गौसे आजम का माल उनके ऊपर खर्चा करना, ये हमें क्या ही एक जरिया बने, हमें क्या ही ये ताज एक माली बन को ही। माली कर को बोले तो एक फूलों का बाग रहता है, अब उसके अंदर गुलाब के फूलों की, कलर कलर के फूलों की, खुशबू के फूलों। अब क्या करता है मुर्शद खलीफा बन को रहता है, उन्हें माली रहता है। क्या करता है माली? पानी डालता है, गोबरी डालता है, फूलों को अच्छा बनाता है, फूलों को अच्छे ताज़े खुशबूदार बनाता है। उसका काम क्या रहता माली का? बना को क्या करता है, वो फूलों को ले जाको गौसे आज़म के दरबार में, ख्वाजा के दरबार में, अहले बैत के दरबार में ले जाको, वो फूल अच्छे रहे तो क्या करता, उनके दहलीज के ऊपर चढ़ाता, उनके दहलीज के ऊपर चढ़ाता। सिलसिले में मशाइख मुर्शद क्या करना बोलो, इन्हें भी अपने मुरीदां को फूला बना को, क्या बना को? फूला बना को, खुशबूदार बना को, वो उसकी हैसियत में ले जाको गौसे आज़म दस्तगीर के रूबरू जाको पेश करना हो। नहीं, उसका काम वो रहता सो, मुर्शद का काम वो रहता सो। मुर्शद का काम गांजा भी अफीम नहीं बनाने का रहता सो, गांजे का झाड़ भी अफीम का झाड़ बना डाल को उन्हें ले जाको दरगाह में डालना से नहीं, उन्हें गुलाब के फूला और खुशबूदार फूला बना को जाको उनको पेश करने का काम रहता। जरा में क्या ही बोलो, ये सभी क्या ही पूरे गंजड़ा बना को ले जाके पहलाती नहीं। हमारा काम क्या है? खुशबूदार बनाना, नहीं अच्छे तंदुरुस्त बनाना। अच्छा बनाए तो हमें भी ले जाको वो दरबार के ऊपर चढ़ाए जा। नहीं, उसका सिलसिले का जो मुर्शद रहता है, उसकी क्या काम? उसका मुर्शद का खाली बैठ को गेज करने का, उसके मुरीदां को ये अच्छा डालना, क्या डालना? पानी गोबरी, और दुश्मनों से बचाना, दुश्मन बना को उसे इल्म देना, अमल देना। अमल दिए तो इंशाअल्लाह क्या होता है, उन्हें कामयाब होता है। नहीं कर को बोले तो वो मुरीद भी क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, वो बाग भी बर्बाद हो जाता है। कोसे भी जानवर आती, बैला गाया को खाले को सीधा चल जाती। कहते कि मुरीदां खाले चल गए नहीं, पूरे खाले चल गई। अब क्या ही कर को बोले तो खाली कांटे बची सो, गुलाब के कांटे बची सो। अब वो कांटे कुछ बोलती हमें वकील साहब के मुरीदां हमना भी ले लो करती, कान लगा लेती कांटे, नहीं कांटे कान भी लगा लेती, कांटे कान चढ़ाती, गोसे दरबार को चढ़ाती कांटियां को। नहीं, कांटा नहीं, कांटे से फायदा नहीं, वो फायदा है सो गुलाब से फायदा है, गुलाब बनना सो। नहीं, वो बोलती बे इल्म, कभी भी याद रख लो मौला अली का एक खौल, इल्म हासिल करना। इंशाल्लाह आइंदा को से ज़िक्र में इसके कैसा बचना, यह खबर जो अजाब है, जो महशर का अजाब है, इसे बचने के कैसे तरीक़े, क्या क्या चीज़ हम ना दुनिया में काम आती, क्या क्या चीज़ हमें दुनिया में काम आती है, ये भी याद रख लो। इतने वजीफ़े दे रही अजमेर को परेशानी, बहुत लंबे हो गए वजीफ़े साहब, बहुत रात को उठा डाल रही है। हमारे बाप दादा च उठाई नहीं, तुम्हें उठा तंग कर डाल रही ना, वो भी उल्टा गालियाँ भी दे डाल रही ना, तुम्हें कर रही नहीं कर रही करो गालियाँ दे रही। देखो याद रख लो, माली की मर्जी वो की कर को बोले तो दुश्मना ज़्यादा, हमें ले जाको, हमें ले जाको तुम ना हुसैन के दरबार में डालेंगे सूचरी, मौला अली के दामन में डालेंगे सूचरी। अगर नहीं करना, नाले हमारा वो डबल रोड में बड़ा नाला है, वहाँ जा गिरना कर तो बोलो ग्रुप तुम्हें छोड़ डालो, ग्रुप तुम्हें छोड़ डालो। इसके अंदर ये नहीं कि कानून मैच निकालना कर को, तुम्हें खुद नहीं होता हमारे हाथ से कर को छोड़ डालो। कौन से देवी गंजड़ा के ग्रुप में जाको जमो, आराम से ज़िंदगी गुजार ले करो। हमें जो काम कर रही हैं, ये कई को मैं ये बताया सो, ये 8 जो गिरोह ही जो महशर के दिन अल्लाह ताला उठाता है, कांत भी हमारे मुरीदा ये 8 गिरोह में कोशिश भी एक गिरोह में चलेगा तो चलेगा, बोलने नहीं होता, उतने गुनाह ही खता ही मच कांदे भी चलेगा तो हो जाता। उसके वास्ते याद रख लो, ये बहुत बड़ी मुश्किल है, और वो सबसे बड़ी मुश्किल को आसान करने का तरीक़ा भी है। कैसा तरीक़ा? खाली सुन ले तो नहीं, सुनने के बाद सबसे ज़्यादा क्या काम आता। अब तुम्हें कांत भी ऊटी गए या शिमला गए या तुम्हें कश्मीर गए, तुम ना सबसे ज़्यादा ठंडे कपड़े काम आती कि जैकेटां भी जरकिना काम आती, गर्म चीज़ें काम आती। जैसा जैसा माहौल रहता है वो माहौल के तहत हमें करना। नहीं, अब कान की गया कश्मीर को ले जाओ, खाली काटन के कपड़े ले चल जा रहे अगर को बोले तो वहाँ जा गालियाँ देते, क्या रहे मुर्शद हम ना ये ठंड में जर्किना उठाना हो, काटन के कपड़े ले लगाओ। अब भेजा कहते मैं अफ्रीका को भेज गए,
जाओ जे जर्किना ले लेके चल जाओ क्या में, क्या बोलती हैं, क्या भाई ने हमारा मुर्शद कॉटन के कपड़े ले लेके जाने की जगह जर्किना भी, टोपियाँ भी, कान टोपा पुला लेके जाना। देखो ऐसा अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल होना, कब्र में क्या होना, महशर में क्या होना, पुल सिरात को क्या होना, ये सब चीज़ें रहती। पुल सिरात के ऊपर चलने की चीज़ें अलग ही, वहाँ जाने की चीज़ें अलग ही, वहाँ का माहौल अच्छा है। खाली सऊदी के पैसे, सऊदी को गए तो रियाला कन्वर्ट कराना नहीं, अमेरिका के गए तो डॉलर होना, तुम्हें नोटा ले लेके चल गए तो इंडिया के जा रहे कहते, इंडिया के अंदर ले लगा सऊदी के रियाला दिए को 1 केजी प्याज देगा तो क्या बोलता हूँ, जा भाई नहीं चलते कहते, नहीं 100 रियाल का तो भी बोलता चल रहा रे 100 रुपये कोड़ू कहता। जो जगह जो चलता है वो चलाना, खबर में क्या चलता है वो चलाना, महशर में क्या चलता है वो चलाना। और जो तुमना वज़ाइफ भी, जो तुमना ये सब चीज़ें दे रही, खुदा की कसम ये खबर में, हशर में, महशर में, पुल सिरात में ये चलने की चीज़ें दे रही सो, ये करेंसी वहाँ चलती सो। अब यहाँ तुमना क्या फ़ायदा है, खुद तुम्हें देख ले रही, मैं बोल रही हूँ उसके फ़ज़ाइल, तुम्हें करने के बाद तुम्हारे रूहानियत में कितनी ताकत है, तुम्हारे ज़बान में कितनी तासीर रही, तुम्हारे ईमान में कितना बड़ा हुआ, तुम्हारे ख्वाब में क्या क्या दीदार हुआ, कैसा कैसा हो रहा, तुमने खुद मालूम हो रहा। जो दिल से करया, जो नहीं करया अल्लाह आलम, उसकी पूरी ज़िंदगी बकते रहो, बैल के सामने खुतबा पड़े सब बैरकर। इंशाअल्लाह आइंदा जिक्र कब है सो पीर के दिन, पीर के दिन ये काम आने वाली चीज़ें। ये तो अब हमारा होगा अजाब, ये तो होगा अजाब, कैसे कैसे अजाब ही हुआ अजाब। अब नेक्स्ट इंशाअल्लाह ये अजाब को हमें क्या क्या करना, कौन से चीज़ें करना, क्या सबसे ज़्यादा हमने काम आती सो चीज़, नमाज, रोज़ा, हज, ये कौन से चीज़ें हैं की कर को बोलो तो ये अगर हमारे समझ में आ गा तो हम ना वो चीज़ें भी हम इस्तेमाल कर ले जाए। पैकिंग के अंदर क्या क्या पैक करना, वो जगह को जाने के वास्ते कितने जोड़ी कपड़े रख लेना, कितने जोड़ी कपड़े रख लेना, लाइट रख लेना, नहीं रख लेना, जूते रख लेना, क्या क्या रख लेना, सब भी मामूली। यहाँ से हमें परसों कहाँ की गए थे ना, हैदराबाद को कि नागौर की हमें हुनसुर को की जाती ना, पूरा रेडी कर लेके जाती, डीजल, पेट्रोल, जर्किना, टोपिया, सब चीज़ें रेडी करती। नहीं मामूली 1 दिन का सफ़र के वास्ते पक्का रेडी हो को जाता, पक्का रेडी रहता। 2 दिन के सफ़र के वास्ते सब कुछ रख लेके जाता हूँ। अरे इतना सोचो, खबर हज़ारों लाखों करोड़ों साल का सफ़र हो, महशर 50,000 साल का सफ़र। अब वो सफ़र के वास्ते हमें रेडी होना नहीं होना, सफ़र के वास्ते रेडी होना ना, उसके वास्ते सिलसिला एक प्लेटफॉर्म जहाँ से खबर हशर महशर को तैयारी करने के वास्ते होता है। अब तैयारी करना अगर को बोले तो खुद अपना सूटकेस पैक करना, बराबर पासपोर्ट रहना, बराबर वीज़ा रहना, ये ले गए तो एंट्री, विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीज़ा वहाँ से वापस। वो पुल सिरात के ऊपर पासपोर्ट पूछता, अल्लाह ताला वीज़ा पूछता है, वो सब चीज़ें रहती हैं। उसके वास्ते हमें सभी इंशाअल्लाह इसका ये कर लेना। और बरकत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, हसन अलैहिस्सलाम की मौलूद, जिस तरह हुसैन, कभी भी हुसैन की बात याद करो, हुसैन बोलते ही तुम्हें हसन को मिला लेना। हुसैन हसन से अलग नहीं, हसन हुसैन से अलग नहीं, हसन हुसैन से अलग नहीं। यहाँ तक हुसैन फरमाती, खुदा की कसम हसन मेरा इमाम है, मेरा पीर है, मेरा मुर्शिद है। हुसैन को जो सब्र सिखाया, जो सब्र सलाम करता है, खुदा की कसम वो सब्र सिखा को उनको ये मरहले में ढालने वाले और उनको तैयार करने वाले इमाम हसन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम बहुत बड़ी हस्ती। और अहले बैत के अंदर उनका दर्जा ऐसा है, अगर बोले तो रसूल पहले, अली दूसरे, फातिमा तीसरे, चौथे, फजीलत में सबसे बड़े हुसैन, फजीलत में हुसैन, रुतबे में हुसैन, मर्तबे में हुसैन, उनकी उम्र में हुसैन, उसके बाद पहले हसन, उसके बाद हुसैन, उसके बाद हसन पहले, उसके बाद हुसैन। या फजीलत में रहते, मर्तबे में रहते, हसन बड़े रहते, हसन बड़े रहते, उनका मुकाम बड़ा। तो इंशाल्लाह 15 रमज़ान को इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मौलूद। अब उसके वास्ते मैं एक भेजा, उसमें ज़र्रा अल्ट्रेशन करना, व्हाट्सअप को तभी जब भेजा लिया मगरिब से पहले, मैं ज़र्रा अल्टर कर को अगिस्नी मदद डालने का है, वो दाल को एक नया भेज दो इंशाअल्लाह। वो सब भी कोशिश करो पूरा करने की, सब कोशिश करो पूरा करने की। और उसके बाद 10 रकत नमाज भी है उनके वास्ते ख़ास। किसके वास्ते? इमाम हसन मुज्तबा के वास्ते 10 रकत नमाज भी है।
اس کا بھی طریقہ بھیج دو. وہ بھی نماز ایک پرسوں پڑھے نا ویسی چاہتی ہے نماز, انشاءاللہ ان کے واسطے بھی کرو. اور 14 تاریخ تک انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو رہتا ہے, جو محفل رہتی ہے, جمعرات کے بدلے جمعہ کو رکھ لیں گے, جمعرات کے بدلے جمعہ کے دن رکھ لیں گے انشاءاللہ. جمعہ کے دن رکھ لے کو انشاءاللہ یہ کریں گے. جو بھی ہیں وہ وظائف پورا کرنے کی کوشش کرو. ابھی سے الگ کیا بھی گروپ بناتا نہیں تو نہیں کرنے والا.